تو جب ہم انسانی تہذیب کی کہانی شروع کرتے ہیں تو ذہن فوراً میسوپوٹامیہ یا مصر کی طرف جاتا ہے۔ جی بالکل، وہی نام سب سے پہلے آتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا ایک ایسا کونا بھی ہے جہاں آج سے 9000 سال پہلے کھیتی باڑی شروع ہو چکی تھی، جہاں ایسے شہر آباد تھے جن میں نکاسی آب کا وہ نظام تھا جو آج کے جدید شہروں کو بھی شرما دے؟ اور یہ سب اس وقت جب روم اور یونان کا کوئی وجود تک نہیں تھا۔ بالکل۔ اور یہ خیال ہی تو سب سے دلچسپ ہے کہ یہ سرزمین جسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ صرف ایک نیا ملک نہیں، بلکہ یہ تہذیب کی ان گہری بنیادوں پر کھڑی ہے جن پر انسانی تاریخ کی عمارت تعمیر ہوئی۔ ہم بات کر رہے ہیں مہر گڑھ کی، وادی سندھ کی تہذیب کی۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کہانیوں کو کھوجیں، قدیم شہروں سے لے کر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک، اور انسانی ہمت کے شاہکاروں سے لے کر قدرت کے حسن ترین مناظر تک۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو شاید اس سرزمین کے بارے میں ہمارے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ عظیم کہانی اپنے عروج پر پہنچی، وادی سندھ کی تہذیب، ہڑپا اور موہنجو داڑو۔ جی، جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں پرانے کھنڈرات آتے ہیں، لیکن یہ صرف کھنڈرات نہیں تھے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اپنے وقت کے یوں سمجھے میٹروپولیٹن شہر تھے، 2600 قبل مسیح میں۔ اور ان کی منصوبہ بندی، مطلب گریڈ کی طرح بنی سڑکیں، پکی اینٹوں کے 2 منزلہ مکان، ہر گھر میں اپنا کنواں، اور غسل خانہ بھی۔ یہ ایک انتہائی منظم اور ترقی یافتہ معاشرے کی نشانی ہے۔ صحیح۔ سوچیں، جب دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں ایک ایسا شہری نظام تھا جہاں صفائی کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ اچھا، مطلب گھروں کا گندا پانی بھی؟ جی، وہ زیر زمین نالیوں کے ذریعے شہر سے باہر جاتا تھا۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں تھی، یہ ایک اجتماعی سوچ کی عکاسی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک تو نہیں بن گیا ہوگا، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا، بلوچستان کے میدانوں میں مہر گڑھ تک۔ مہر گڑھ؟ جی، تقریباً 7000 سال قبل مسیح، یعنی آج سے 9000 سال پہلے۔ یہ جنوبی ایشیا میں زراعت اور جانور پالنے کے سب سے پرانے شواہد میں سے ایک ہے۔ تو مطلب وادی سندھ کی تہذیب کی بنیاد یہاں رکھی گئی؟ بالکل۔ مہر گڑھ وہ پہلی اینٹ تھی جس پر وادی سندھ کی عظیم عمارت کھڑی ہوئی۔ ان قدیم شہروں کی زندگی کا انحصار ایک دریا پر تھا، اور آج بھی اس ملک کی شہرگ وہی دریا ہے، دریائے سندھ۔ شہرگ، آپ نے بالکل درست کہا۔ ہمالیہ کے گلیشیئر سے نکل کر یہ تقریباً 2000 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ زندگی کا بہاؤ ہے۔ اور اسی ایک دریا سے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام نکالا گیا ہے نا؟ جی، انڈس بیسن اریگیشن سسٹم۔ یہ نہروں کا ایک ایسا جال ہے جو لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ ملک کی تقریباً 80% زراعت اسی پانی پر منحصر ہے۔ لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے۔ بالکل، یہی گلیشیئرز جو اس دریا کو زندگی دیتے ہیں، اب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے مستقبل میں پانی کی شدید کمی کا خطرہ ہے۔ تو یہ دریا ایک ہی وقت میں نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی۔ آپ نے پانی کے توازن کی بات کی، یہی جدوجہد ایک بالکل مختلف ماحول میں بھی نظر آتی ہے، صحرا میں، تھر کا صحرا۔ جی، اور تھر اس خیال کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے کہ صحرا بے جان ہوتے ہیں۔ کیسے؟ زیادہ تر سال تو وہ خشک اور بے رنگ نظر آتا ہے، لیکن مانسون کی ایک بارش کے بعد جیسے جادو ہو جاتا ہے۔ بالکل، سوکھی زمین پر رنگ برنگے پھولوں کا ایک قالین بچھ جاتا ہے، پیلی ریت سبزے اور رنگوں سے ڈھک جاتی ہے۔ یہ قدرت کا پیغام ہے کہ زندگی سخت ترین حالات میں بھی راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ انسانی ہمت کی بات کریں تو شاہراہ کراکورم سے بڑی مثال شاید ہی کوئی ہو۔ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے، یہ انسانی عزم کی ایک یادگار ہے، اور وہ بھی دنیا کے مشکل ترین پہاڑی سلسلے میں۔ 15,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر، جہاں آکسیجن کم ہوتی ہے، درجہ حرارت منفی میں رہتا ہے، اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اسے بنانے میں 20 سال لگے۔ جی، اور سینکڑوں مزدوروں نے اپنی جانیں دیں۔ یہ سڑک صرف پتھروں اور تارکول سے نہیں بلکہ انسانی قربانیوں سے بنی ہے۔ اور اسی سڑک پر
इसी बुलंदी पर एक ऐसी चीज है जो जदीद दुनिया और इस कदीम मंजरनामे के टकराव को जाहिर करती है। दुनिया की बुलंद तरीन एटीएम। बिल्कुल, 15,000 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर शमसी तवानाई से चलती है। ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसकी अलामती अहमियत बहुत गहरी है। एक तरफ ये बुलंद बाला खामोश पहाड़ है और दूसरी तरफ आलमी मालियाती निज़ाम की एक अलामत। ये इस बात का सबूत है कि इंसानी जिद्दत अब दुनिया के किसी कोने तक भी पहुंच सकती है। उन पहाड़ों की बात करें तो एक नाम सबसे ज्यादा खौफ और एहतराम के साथ लिया जाता है, K2। वहशी पहाड़। जी, ये नाम सुनकर ही खौफ आता है। क्या ये सिर्फ मौसम और बुलंदी की वजह से है या इसमें कुछ और भी है? ये एक बेहतरीन सवाल है। बुलंदी तो है ही, लेकिन K2 की असल मुश्किल वो इसकी तकनीकी साख्त है। अच्छा। एवरेस्ट के बरक्स इस पर कोई आसान रास्ता नहीं है। हर तरफ से ये तकरीबन अमूदी चढ़ाई है। मौसम का कोई भरोसा नहीं, 1 घंटे में धूप से बर्फानी तूफान में बदल सकता है। इसीलिए इस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर 4 में से एक कोहपैमा वापस नहीं आता। जॉर्ज बेल ने ठीक कहा था, ये एक वहशी पहाड़ है जो आपको मारने की कोशिश करता है। और इसी वहशीपन के साए में कुतबी इलाकों से बाहर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं। जी, बाल्टोरो ग्लेशियर, और यहीं से दुनिया का मशहूर कॉनकॉर्डिया ट्रैक गुजरता है। कोहपेमाओं का तख्त। बिल्कुल, ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां से आप 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 चोटियों में से 4 को एक साथ अपने सामने देख सकते हैं। K2, ब्रॉड पीक, गैशरबरम 1 और 2। जी, ये एक ऐसा मंजर है जो आपको एहसास दिलाता है कि इंसान कुदरत के सामने कितना छोटा है। इन वाशी पहाड़ों के दामन में कुछ वादियां ऐसी भी हैं जो जन्नत का टुकड़ा लगती हैं, जैसे हुंजा। हुंजा सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये सकाफत और तारीख का एक संगम है। जी, खोबानी के बागात, छतों पर बने गांव और नीला दरिया। और यहाँ ब्रुशस्की जैसी कदीम जबान बोली जाती है जिसका ताल्लुक दुनिया की किसी और जबान से नहीं मिलता। यहाँ की इस्माइली बरादरी तालीम पर बहुत जोर देती है, खास तौर पर ख़वातीन की तालीम पर। और इसी वादी में एक ऐसी झील है जिसकी कहानी तबाही और खूबसूरती के अजीब रिश्ते को बयान करती है, अताबाद झील। बिल्कुल, 2010 में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ने दरियाए हुंजा का रास्ता रोक दिया। एक बहुत बड़ी आफत थी। जी, लेकिन महीनों बाद जब रुका हुआ पानी जमा होता गया तो उसने एक नई गहरे फेरोजी रंग की झील बना दी। आज ये हुंजा के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। ये कुदरत की एक ताकतवर मिसाल है कि किस तरह तबाही के बतन से भी एक नई खूबसूरती जन्म ले सकती है। हिंजा से आगे बढ़ें तो स्कर्दू आता है, जिसे कराकरम का दरवाजा कहते हैं। यहाँ के मनाजिर इतने मुतनव्वे हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जी, इस कर्दू में कैतपाना का सर्द सहरा है, सफेद रेत के टीले और उनके पीछे बर्फपोश चोटियां। दुनिया के बुलंद तरीन सहराओं में से एक। जी, और यहाँ अपर कचूरा झील है जिसका पानी इतना साफ है कि आप उसकी तह देख सकते हैं। ये कुदरत का वो रूप है जिसे अभी तक इंसानी मुदाखलत ने खराब नहीं किया। और फिर देवसाई का मैदान है, इसका नाम ही पुरस्कार है, देव की छाया। देवसाई 13,000 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सतह मुर्तफा है। सर्दियों में मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो ये लाखों जंगली फूलों के एक समुंदर में बदल जाती है। यहाँ हिमालयन भूरे रीछ और गोल्डन मार्मोट आजाद घूमते हैं। शिमाल की इस खामोशी से निकलकर अगर हम शहरों की तरफ आएं तो फने तामीर के कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ शाहकार नजर आते हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, इसका डिजाइन रिवायती मस्जिदों से बहुत मुख्तलिफ है, कोई गुंबद नहीं। जी, इसे तुर्की के मेमार वेदात दुलोके ने एक बदवी खेमे की शक्ल में डिजाइन किया है। ये इस्लाम की सादगी और अफाकियत की अलामत है। इसके 300 फुट बुलंद पेंसिल जैसे मीनार और खेमा नुमा मरकजी हॉल इसे एक जदीद शनाख्त देते हैं। और जदीद फन तामीर से अगर हम दोबारा कदीम तारीख की तरफ जाएं तो टैक्सला का शहर आता है, गंधारा तहजीब का मरकज। टैक्सला 2000 साल पहले दुनिया का एक बहुत बड़ा इल्मी और सकाफती मरकज था। इसे दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक समझा जा सकता है ना? बिल्कुल, जहां हिंदुस्तान, वस्ती एशिया और यूनान से तालिबे इल्म हासिल करने आते थे। यहाँ बुद्ध मत, हिंदू मत और यूनानी सकाफत का संगम हुआ,
जिससे गंधारा आर्ट ने जन्म लिया। और इसी खित्ते में कटास राज के मंदिर हैं, जिनके साथ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। जी, पंजाब के नमक के पहाड़ों में ये मंदिर एक मुकद्दस तालाब के गिर्द बने हैं। हिंदू देवमाला के मुताबिक जी, कहा जाता है कि जब देवी सती का इंतकाल हुआ तो उनके शौहर शिव भगवान इतना रोए कि उनके आंसुओं से 2 तालाब बन गए, एक यहाँ कटासराज में और दूसरा अजमेर हिंदुस्तान में। अब अगर सिंध की तरफ चलें तो वहाँ तारीख के 2 और अजीम बाब हैं। मकली का कब्रिस्तान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, ये एक खामोश शहर है। बिल्कुल, 4 मुरब्बा मील पर फैला हुआ, जहाँ 5 लाख से ज्यादा बादशाहों, रानियों, सूफियों और आलमों की कब्रें और मकबरे हैं। ये 14वीं से 18वीं सदी तक की तारीख का एक खुला अजायब घर है। और इसी के करीब ठिट्ठा की शाहजहां मस्जिद है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसके 93 गुंबद हैं। जी, और उन गुंबदों की वजह से इसकी सौतियात यानी आवाज गूंजने का निजाम ऐसा कमाल का है कि कहा जाता है कि मरकजी हॉल के एक कोने में की गई सरगोशी दूसरे कोने तक साफ सुनाई देती है। ये तो हैरान कुन है। और इसका नीली और सफेद टाइलों का काम इस्लामी फने तामीर का एक बेमिसाल नमूना है। और अब चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, उसकी माशी धड़कन कराची की तरफ। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर जो कभी नहीं सोता, ये मुल्क का माशी इंजन है। और ये एक हकीकी मेल्टिंग पॉट है ना? जी, एक ऐसी जगह जहां पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग आकर बसते हैं, अपनी जुबानें, सकाफतें और खाने साथ लाते हैं। इसीलिए कराची की अपनी एक मुनफरिद, मुतहर्रिक और कसीर सकाफती शनाख्त है। और आखिर में एक ऐसी जगह जहां का जोग्राफिया किसी दूसरी दुनिया का लगता है, बलूचिस्तान का हिंगूल नेशनल पार्क। हिंगूल पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और शायद सबसे मुनफरिद भी। यहाँ सहरा, पहाड़ और समंदर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। हुआ और पानी ने यहाँ की चट्टानों को अजीबो गरीब शक्लों में तराशा है। जी, इनमें से एक चट्टान प्रिंसेस ऑफ होप कहलाती है, जो दूर से एक नकाबपोश औरत जैसी लगती है। और यहाँ कंदुमुलेर का साहिल है, जहाँ सुनहरे रेगिस्तान के टेले सीधे नीले समंदर से जा मिलते हैं। एक ख्वाबनाक मंजर है। तो हमारा आज का सफर मेहरगढ़ में तहजीब की पहली किरण से शुरू हुआ, केटू की बुलंद तरीन चोटियों से गुजरा, शाहजहां मस्जिद के गुंबदों की सरगोशियां सुनी और कराची की तेज रफ्तार जिंदगी से होता हुआ हिंगोल के पुरस्रार साहिलों पर खत्म हुआ। ये लचक, तनव्वो और अनगिनत पोशीदा कहानियों का सफर था। बिल्कुल। और यहाँ सामीन के लिए एक सोच छोड़ जाते हैं। जब तारीख, जोग्राफिया और इंसानी अज़्म किसी एक जगह पर इतनी ताकत से इकट्ठे हो जाएं, तो यह हमें दुनिया के दूसरे कोनों की उन कहानियों के बारे में क्या बताता है जो हमने अभी तक नहीं सुने।